Namaste everyone. I am Neetu Somani, your host and moderator for today. I am a yoga instructor and yoga therapist from Singapore. It is a great pleasure and honor to be amongst such great dignitaries and speakers today. आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. As you all know, 21st June is the International Day of Yoga, and we have started the celebrations already. YouthNews.online, in association with National Youth Foundation, Indian Yoga Association, and Parmarth Niketan Ashram have organized International Yoga e-conclave, and today is the second day. We have some renowned and eminent speakers from all over the world to enlighten us. Yesterday was the first day of the conclave, and we had the privilege to listen to many spiritual gurus and yoga masters from all over the world sharing their wisdom and knowledge with us. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to all of you for the second day of International Yoga e-conclave 2021. I would like to thank the sponsors of the conclave, who are City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hum Purna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Studio, International Naturopathy Organization, SBPASS, World Yoga Federation, Yoga Alliance International, Sunmark Event Expert, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College, Jalgaon, Anand Ashram Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda and Garbh Sanskar Academy, Manav Dharam Argentinian Hindu Parishad. Thank you all. The reach and spread of yoga today spans across continents. There are communities of yoga practitioners in almost every country in the world today. In order to benefit fully from yoga, to understand yoga in its entirety, we must reflect on who is a yogi. There is a beautiful shlok in Bhagavad Gita where Lord Krishna says, Yasmano dvijate loko, lokano dvijate chayaha, harshamarsh bhayo dvegair, muktoya sachme priyaha. By whom the world is not disturbed, and he who is not disturbed by the world, who is free from joy, impatience, fear, and distress, he is also dear to me. As you all know, we are going through extraordinary times with the pandemic still quite prevalent. As the world battles the COVID-19 pandemic on a war footing, India's traditional system of yoga has been established as a means to boost immunity, improve overall health and well-being. On 20th March 2020, Director General of the WHO also suggested that people could do yoga to maintain their physical and mental health. This will not help you only in the long term, it will also help you to fight COVID-19 if you get it, he suggested. To welcome you all on behalf of YouthNews.online, Parmarth Niketan Ashram and Indian Yoga Association in the International Yoga e-conclave 2021. आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, महान विभूतियां हैं, जिनसे वैसे रूबरू हो पाना शायद मुश्किल होता, लेकिन कोरोना ने काफी सब कुछ आसान कर दिया और शायद हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ऐसे समय में हैं जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और ये सही जरूरत है, ये कार्यक्रम इस समय की जरूरत बन चुका है। ऐसे कार्यक्रम में यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का, यहाँ पर आए हुए सभी महान विभूतियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। This event is organized by YouthNews.online in association with Indian Yoga Association, Parmarth Niketan Ashram and Indian Yoga and National Youth Foundation.
This event is supported by City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hanspurna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Institute, International Naturopathy Organization, SB Pass, World Yoga Federation, Yoga Alliance International, Sanmarg Event International, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College, Jalgaon, Ananda Ashram, Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda at Garbh Sanskar Academy, Manav Dharma Argentina, Hindu Parishad. We'd like to welcome everyone on board. We would like to welcome Mr. Ravi Tripathi, Indian Idol finalist, and who represented India internationally in Asian Games. We would like to welcome chief guest, Dr. H.R. Nagendra Guruji. He has joined us. We welcome you all on behalf of our entire team and on the behalf of the supporting organizations. We would like to welcome Ms. Bhanumati Narasimhan, the chairperson, Women Empowerment and Child Care Programs from Art of Living Foundation. We would like to welcome Dr. Jagdish Gandhi, founder, CMS Group of Institutions. We would like to welcome Dr. Ananda Balyogi Bhavnani ji, Chairman ICYER and Yoganjali Natyalam. We would like to welcome Subodh Tiwari ji, Vice President, Indian Yoga Association and Founder Director, Kaivalya Dham. We would like to welcome Sarita P. Naik, the founder of UGLC and the faculty of AYG Academy. We would like to welcome Dr. Ishwar K. Baswareddy, Director, Murarji Desai National Institute of Yoga, Dr. Vishwas Manlik ji, founder, Yoga Vidya Dham, Swamini Durga Saraswati ji, the faculty, Peter Rosina, founder, Project Peace Lights, Aparna Das, President, ISKCON Temple, Dr. Satyendra Kumar Mishra, faculty member, Faculty of Yoga and Alternative Medicine, Lucknow University. We would like to welcome you all on board for making this event a memorable event. And एक बार पुनः यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी संस्था youthnews.online की तरफ से, परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ से, नेशनल यूथ फाउंडेशन की तरफ से और इंडियन योगा एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने होस्ट से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। Okay, now we have our next special guest tonight is Dr. Jagdish G. Gandhi, who is the founder of City Montessori School. It is mentioned as world's largest school in terms of pupils by Guinness Book of World Records. I would like to welcome him to enlighten us with his wisdom. Namaste, Dr. Jagdish ji. Namaste. आदरणीय हिमांशु पांडे जी, आदरणीय नीतू सोमानी जी, हमारी परम आदरणीय चीफ गेस्ट डॉक्टर HR नागेंद्र जी एंड समस्त सम्मानित भाइयों और बहन। योगा और आध्यात्म दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने योग को लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमारे सामने सिंप्लीफाई करके दिया। योगा तो हमारे यहाँ लाखों वर्षों से था, बहुत पुरानी एक प्रथा है जो कि चली आ रही थी, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसके ज्ञान को सरल बनाया और इसे साधारण आदमी समझ सके, इस योग्य बना दिया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए, क्योंकि योग सारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। 14 अक्टूबर 2014 को ये प्रस्ताव पारित हो गया और 21 नवंबर को प्रतिवर्ष ये योगा दिवस सारी दुनिया में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस में मुख्य प्रोग्राम होता है और पिछले लास्ट ईयर तो हम नहीं भेज पाए क्योंकि कोरोना था। उससे पहले 4 वर्षों तक लगातार लगभग 60 से 70 तक बच्चे हमारे हर साल जाके यूनाइटेड नेशंस में 21 नवंबर को योगा करते रहे। तो योगा एक केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि योगा हमारे मन और मस्तिष्क, और योग का नाम ही है हमारी आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, योग हो जाना।
तो परमात्मा की आज्ञाएं हमारे अंदर आने लगे। तो योग से केवल ये एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया भी है। और योग से जो लोग योगा करते हैं वो महसूस करते होंगे कि उनके आध्यात्मिकता में ये सहायक होता है। आध्यात्म बहुत बड़ी चीज है और मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, परमात्मा ने कहा है कि मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने की मानी तेरी आज्ञाओं को जानूं और तुझे तेरी पूजा करूं, अर्थात उन आज्ञाओं पर चलूं। परमात्मा ने अपने संदेश वाहकों के द्वारा युग युग में अपना संदेश भेजा है और इसीलिए ये मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहलाते हैं, मैसेजेस लाने वाले। भगवान राम आज से 7,500 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और वो स्वयं कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनके चले जाने के 2,500 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण का इस धरती पर आगमन होता है और गीता का संदेश उन्होंने दिया, जिसमें था न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। तो उन्होंने कहा कि परिवार में भी न्याय हो, समाज में भी न्याय हो, संस्थाओं में भी न्याय हो, उद्योग धंधों में भी न्याय हो। तो न्याय के बिना अव्यवस्थित हो जाएगा और व्यवस्थित नहीं रहेगा कुछ भी, इसलिए न्याय बहुत आवश्यक है। और ये सारी मानव जाति के लिए, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कोई ज्ञान नहीं होता। ये मर्यादा का ज्ञान हो या न्याय का ज्ञान हो, तो ये मुख्य ज्ञान जो गीता में है वो यही है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इसी न्याय को देने के लिए महाभारत की रचना हुई, जिसमें 18 अक्षौणी सेना का था। कृष्ण के चले जाने के बाद लगभग 2,500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का इस धरती पर आगमन होता है और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध सत्व वट वृक्ष के नीचे बैठे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ये त्रिपिटक में उन्होंने ज्ञान दिया है, सम्यक ज्ञान। उन्होंने कहा कि जीवन में हमारा संतुलन हो और हमारी सम्यक सोच हो, सम्यक चिंतन हो, सम्यक भोजन हो, सम्यक हर चीज सम्यक हो, संतुलित हो, सम्यक हो। उन्होंने कहा कि जाति पाति ये भी गलत है, तब ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, क्षत्रिय उससे नीचे है और वैश्य और भी नीचे है और शूद्र और भी नीचे है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा की बनाई नहीं है। परमात्मा ने कोई जाति पाति नहीं बनाए, परमात्मा ने तो प्राणी बनाए और प्राणियों के अंदर अपना आत्म तत्व दिया है और प्राणियों के लिए एक ही है कि वे प्रभु की आज्ञाओं को जाने और उन पर चले। तो प्राणियों को तो यही उन्होंने संदेशा दिया है। तो इसी तरह से उनके चले जाने के बाद भी 500 वर्ष बाद, यानी बुद्ध की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद यीशु मसीह का आगमन होता है और उन्हें एक डब, एक फाख्ता, एक गॉडली वर्ड आके बाइबल का ज्ञान दे गई। और ये बाइबल का मुख्य उद्देश्य है कि इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणामय या दयामय होगा। तो ये उन्होंने ज्ञान दिया और उनके भी चले जाने के बाद और करीब करीब आप समझिए कि भगवान ये यीशु मसीह का आगमन होता है और उन्होंने कहा करुण। और उसके चले जाने के बाद तब करीब करीब 600 वर्ष बाद, यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद का आगमन होता है और उन्हें खुदा की तरफ से पैगाम आया और फरिश्ता आता था और वो उनको
खुदा की तालीमात देता था। 23 वर्षों तक ये कुरान की आयतें आती गई और वो पेड़ की सूखी खालों पर या ताड़ की पत्तियों पर लिख ली जाती थी और वो सब उसको इकट्ठा किया गया तो वो कुरान शरीफ बनी। तो होली कुरान तो कोई मोहम्मद साहब की किताब नहीं है, ये किताब तो अल्लाह से आई। अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, उसके जितनी भाषाएं उतने उसके नाम हैं। तो हजारों भाषाएं, हजारों उसके नाम हैं। हर भाषा में उसकी इबादत करने के लिए एक लोगों ने नाम चुन लिया, रख लिया है। तो ये उसका एक ही सत्ता है जो सृष्टि को चलाती है। तो ये मोहम्मद साहब को जो संदेश आया कुरान में, पहली आयत है खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं, वो रब्बुल आलमीन है। इस धरती का रब है, इस सृष्टि को बनाने वाला खुदा एक है। हम सब एक खुदा के बंदे हैं, एक परमात्मा ने हम सबको बनाया। तो भाईचारा और मोहब्बत और प्रेम का संदेश है कुरान शरीफ। और उनके भी चले जाने के बाद तो करीब 900 वर्ष के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी का आगमन होता है धरती में और उन्होंने संदेश दिया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़दी कला तो तेरे भाने सर्वत्र दावला। तो उन्होंने कहा कि एक नूर से सब जग उपजा, ये सारी सृष्टि एक परमात्मा से उत्पन्न हुई है, किसी को भला बुरा न करे। और नानक नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग तो है, लेकिन एक शर्त है, तब जब तेरे भाने सर्वत्र दावला, सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की भलाई की भावना हो, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर ले जा सकता है। उनके भी चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु के करीब 350 वर्ष के बाद, 300 वर्ष के बाद बाहुल्लाह का आगमन होता है, जिन्होंने भाई फेंक दिया। उन्होंने कहा कि एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। My God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve Thank thee. you. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy word and cheer them by thy love. Verily, thou art their helper and their love. Thank you, Dr. Jagdish ji. एक कर दे हृदय अपने, हाथ हमारे पवित्र होंगे तो एक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे परिवार, संसार भर में जितने परिवार हैं, उनके जो परिवार जन हैं, माता पिता भाई बहन दादा दादी, सबके हृदय पवित्र हो और सब एक हो जाए तो घर में स्वर्ग आएगा। सब समाज में, मोहल्ले में, देश में और प्रांत में और गांव में, नगर में, सबके हृदय एक हो जाए तो स्वर्ग आ जाएगा। तो बहुत बहुत सही कहा। एकता की बात उन्होंने कही। तो योग और आध्यात्म दोनों चीजें हमारे लिए आवश्यक है। और आध्यात्म केवल इतना सा है, ईश्वर एक है, धर्म भी एक है, मानव जाति भी एक है, सारे अवतारों का आगमन एक परमात्मा से हुआ है। सब अवतारों का भी परमात्मा एक ही है, अनेक परमात्मा नहीं। तो हम सबका भी परमात्मा एक है, सारा विश्व हमारा परिवार है। एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखा।